علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا پسندیدہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لے کر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کی یوں سمجھ لیجئے ابتدا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم یہ طے کریں گے کہ کس ٹیم کا مقابلہ کس سے ہوگا۔ سیزن 1، 2، 3 اور 4 اس میں مختلف جامعات، مختلف مدارس کے طلباء، مدنی منوں کے درمیان یہ مقابلہ چلتا رہا، مگر اب سیزن 5 ہم لائے ہیں ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اس میں انشاءاللہ مدنی منع نہیں بلکہ ہمارے بڑے اسلامی بھائی، جی ہاں بڑے اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی کسی جامعہ، کسی مدرسے کے طلباء نہیں بلکہ یہ شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے کم و بیش 95 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور ان شعبہ جات میں سے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں 14 شعبہ جات۔ ان 14 شعبہ جات کے ہر شعبے کے 3 اسلامی بھائی اپنے شعبے سے انہوں نے سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان شعبہ جات کے درمیان مقابلہ ہوگا، بڑی دلچسپ معلومات آپ کو بھی حاصل ہوگی، اور ان شعبہ جات کے درمیان جب مقابلہ ہوگا تو ساتھ ساتھ ہم ان شعبہ جات کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اس مدنی مقابلے میں، ذہنی آزمائش میں ہم کریں گے کیا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ مقابلہ چلے گا کس طرح وہ بھی آپ کو بتائیں گے، کون کون سے شعبہ جات اس سلسلے میں شامل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پھر ان مقابلوں کے اندر سیگمنٹس کیا ہوں گے، اس کے مرحلے کیا ہوں گے، ادوار کیا ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے اور سنتے جائیں گے۔ ہم روزانہ ہی اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، اور ہم روزانہ ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوالات کیا کریں گے، یہاں موجود حاضرین سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا انعامات بھی بڑھتے جائیں گے۔ جی ہاں، انعامات اس بار کچھ نئے انداز سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے ہم اپنے سلسلوں کے اندر جو ہم سے جدا ہوتے تھے ان کو جاتے جاتے کچھ تحائف پیش کرتے، کبھی امامے، کبھی کپڑے کا سوٹ دے دیتے، کبھی کچھ کتابیں دیتے، لیکن اس بار بھی ہم نے محروم خالی کسی کو نہیں لوٹانا۔ الحمدللہ جو بھی یہاں سے واپس جائیں گے، یعنی ہمارے ساتھ اگر وہ سلسلے میں پیچھے بھی رہ گئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ انہیں ایک واؤچر کی صورت میں، ایک گویا چیک کی صورت میں کچھ رقم کا وہ چیک دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے مرحلے میں جو اسلامی بھائی پیچھے رہ جائیں گے اور وہ ہم سے جدا ہوں گے، ہر اسلامی بھائی کو، یعنی اگر 3 کی ٹیم ہے تو ہر اسلامی بھائی کو 2600 روپے کا ایک چیک دیا جائے گا، ایک واؤچر دیا جائے گا۔ وہ چیک کسی بینک پر کیش نہیں ہوگا بلکہ وہ چیک مکتبۃ المدینہ پر جب وہ جائیں گے تو مکتبۃ المدینہ کی اشیاء وہ اس پیسوں سے خرید سکیں گے۔ اب اس میں ان کی اوپر ہے کہ وہ اس سے کچھ بھی خریدیں، کتابیں لیں، رسائل لیں، VCDs لیں، مکتبے کی کوئی بھی پروڈکٹ وہ خرید سکیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ بھی یہی موجود ہوگا۔ جی ہاں، انشاءاللہ ہم بتاتے چلیں ناظرین کو کہ آج تو چونکہ قرآن دازی ہے، اتوار والے دن سے روزانہ رات 9:30 بجے یہ سلسلہ مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ روزانہ ہی ایک ٹیم آگے کی طرف جائے گی، ایک ٹیم کچھ دیر کے لیے ہم سے بچھڑے گی، اور اس کو جب جانے والے ہوں گے ان کو کچھ انعامات اور کچھ جناب مکتبے کے لیے واؤچر دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ہم سے دور ہونے والوں کو 2600 روپے کا واؤچر، یہ چیک دیا جائے گا۔ جو کوارٹر فائنل میں پہنچ جائیں گے ان کو 6300 روپے کے واؤچر پیش کیے جائیں گے، چیک دیا جائے گا جو مکتبے پر جا کر وہ خریداری کر سکیں گے۔ جو ہمارے اسلامی بھائی
सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और वहां से हमसे जुदा होंगे तो फी इस्लामी भाई 12,000 रुपए का उन्हें वाउचर दिया जाएगा, जिससे वो मकतबे की खरीदारी करेंगे। और जो फाइनल में जाकर हमसे दूर होंगे तो उन्हें फी इस्लामी भाई 25,000 रुपए का वाउचर पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना में जाकर अपने लिए प्यारी प्यारी किताबें और बहुत सारे इल्म दीन का सामान वो हासिल कर सकेंगे। और जो यहां से फाइनल सीजन 5 का जीत कर जाएंगे उनके लिए फी इस्लामी भाई 2 ऑप्शन होंगे, या तो 50,000 रुपए फी इस्लामी भाई का हमसे वो वाउचर लेंगे और मकतबे से जाकर अपनी पूरी लाइब्रेरी को भर लें, या फिर उसी 50,000 रुपए से हमारे ही मकतबे से उन्हें उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा। तो ये है हमारे इस पूरे सिलसिले का फॉर्मेट जो आगे तक चलता रहेगा। तकरीबन 16 सिलसिले इस पूरे सीजन 5 को कंप्लीट होने के लिए होंगे। तो नाजरीन, आप भी तैयार हो जाइए, अपने साथ एक डायरी बना लीजिए, एक कलम बना लीजिए। ये मेरा दावा है इंशाअल्लाह अगर सारे सिलसिले आप देखेंगे तो वो मालूमात आपको हासिल होनी है जो शायद आप में कई इस्लामी भाइयों को नहीं पता होगी। नए नए मदनी फूल आप सीखते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बड़े निराले, बड़े प्यारे और इल्म दीन से भरपूर सेगमेंट्स हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अपने इस सिलसिले में हमारे आज के जो सीजन 5 का हम इब्तिदा कर रहे हैं, कौन कौन सी टीम सेलेक्ट होंगी, कौन कौन सी टीम्स हैं जिनके दरमियान मुकाबला होंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे वो टीम्स कौन सी हैं। जरा हमारी नाजरीन को स्क्रीन पर बताइए। जी माशाअल्लाह, ये वो 14 शोबा जात हैं। मदनी काफिला, तावीज़ात अत्तारिया, मदनी इनामात, जामियतुल मदीना, मदनी चैनल, मकतबतुल मदीना, नात ख्वां मजलिस। जी हाँ, नात ख्वां इस्लामी भाई भी हमारे दरमियान होंगे। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, शोबा तालीम, दारुल मदीना, मदरसतुल मदीना, अल मदीनतुल इल्मिया, मजलिस से खुसूसी इस्लामी भाई और मजलिस से IT। ये 14 टीम्स हैं और इन 14 टीम्स के दरमियान से मुकाबला अब शुरू होगा। लेकिन आज पहले ये तय होगा कि किसका पहला मुकाबला किससे है, ये तय हो जाएगा। और इतवार से ये मुकाबले 9:30 बजे रात शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि हम कुरानदाजी की तरफ जाएं, देखें कि पहला मुकाबला किसका किससे है, आइए देखते हैं कि हमारा ये मुकाबला चलेगा किस तरह, यानी इसके सेगमेंट्स क्या होंगे, किस तरह ये मुकाबला होगा। जरा बताइए कि इस मुकाबले के अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स होंगे। जी ये स्क्रीन पर देखते हैं। पहला जो अदवार जो होंगे, जो सेगमेंट्स होंगे, जवाब दीजिए सवाल का, जिसके अंदर 10-10 सवालात दोनों तरफ से इस्लामी भाइयों से किए जाएंगे और हर सवाल के 2 नंबर होंगे और ये 20 नंबर का पहला दौर, पहला सेगमेंट होगा। उसके बाद मुकाबला होगा शेर मुकम्मल कीजिए, यानी अशआर आपको हो सकता है कुछ इशारे दिए जाएं, कुछ अल्फाज बताए जाएं और उस पर आपको शेर मुकम्मल करना होगा। तीसरा जो सेगमेंट होगा मदनी गुलदस्ता, बहुत ही खूबसूरत इल्म दीन से भरपूर एक मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा, गौर से देखना होगा और उसमें से सवालात आपसे पूछे जाएंगे। फिर ये अमल कौन सा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए हमें बहुत सारे आमाल के बारे में मालूमात हासिल होगी, कुछ इशारे दिए जाएंगे और आपने वो अमल पहचानना होगा। फिर उसके बाद जो 5वां सेगमेंट होगा, अगला सेगमेंट बताइए कि उसके बाद ये अमल कौन सा है। उसके बाद सेगमेंट होगा समझाइए मगर इशारों से। जी ये तो हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों का सिलसिला होगा, यूं समझ लीजिए। अब इशारों के ज़रिए आपने अपने बकिया 2 साथियों को समझाना होगा कि हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं। तो इसमें इंशाअल्लाह नीयत हम ये करेंगे कि इस बहाने हम कुछ इशारे सीख जाएंगे, हमारे नाज़रीन भी सीख जाएंगे और जब खुसूसी इस्लामी भाइयों में काम करेंगे तो हमें उसका भी बेनिफिट होगा। अगला हमारा दौर जो समझाइए मगर इशारों के बाद होगा वो है फिकही पहेलियां। जी फिकही पहेलियां, ये नया सेगमेंट हम लेकर आ रहे हैं कि वो बड़े ही दिलचस्प सवाल जो फिकही पहेलियां हैं कि वो जब नाजरीन सुनेंगे फिर पता चलेगा कि वो कौन सी पहेलियां हैं। आज तक तो पहेलियां सुनी थी, ये फिकही पहेलियां कौन सी हैं। जी हाँ, फिक के अंदर भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो पहेलियों की मानिंद हैं और जिसको बूझना बड़े इल्म और ज़ौक़ की बात है। तो इंशाअल्लाह वो भी आप सुनेंगे। अगला सेगमेंट बताइए। फिर होगा सफ़र है मगर अकेले। देखिए बाज़ औक़ात होता ये है, 3-3 इस्लामी भाई तो साथ हो गए, एक ही बड़ा ज़बरदस्त इस्लामी भाई होता है, सबको लेके चलता है, मगर हम थोड़ी देर के लिए आपको अकेला अकेला भी करेंगे और आपसे अकेले कुछ सवाल करेंगे जो फ़कत आपने जवाब देना होगा। तो सफ़र है मगर अकेले, तो ये भी होगा। और फिर बड़ा ही ज़बरदस्त और मकबूल आम हमारा सेगमेंट है जिसमें हमने देखा है बाजी पलट जाया करती है और वो सेगमेंट होगा जोश के साथ
مگر ہوش سے، ہم آپ کا جوش بھی چاہتے ہیں مگر ہوش کے ساتھ۔ تو بہرحال کچھ سیگمنٹس ہمارے پہلے راؤنڈ میں ہوں گے، جیسے جیسے سیمی کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کی طرف ہم بڑھیں گے ہو سکتا ہے کچھ نئے سیگمنٹ بھی شامل ہوتے جائیں، بلکہ یہاں پہ اپنے ناظرین کو دعوت دوں گا، دعوت اسلامی بھی آپ کی، مدنی چینل بھی آپ کا، ذہنی آزمائش بھی آپ کا۔ آپ ہمیں مشورہ دیجئے کہ ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ ان کی مشکل میں کچھ اور اضافہ کیجئے اور ہمیں کوئی اچھا سا سیگمنٹ بتائیے، کوئی خوبصورت سا ہمیں کوئی طریقہ بتائیے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنے اگلے راؤنڈز میں شامل کریں گے، ان کی ذہنی آزمائش میں کچھ اور اضافہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اتوار رات 9:30 بجے سے روزانہ ہی یہ سلسلہ ہونے جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن دازی کی طرف چلیں، مختصر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور پھر قرآن دازی کے ذریعے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن مجید جب بھی ہو اسے خاموشی سے سننا چاہیے، تو ہم بھی انشاءاللہ بیٹھ جاتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے قرآن دازی کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، ہر پھول میں بو تیری آقا، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، بلبل بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب یا رب، چھوٹے نا الہی اب، سنگ در جانانا، چھوٹے نا الہی اب، سنگ در جانانا، پیتے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در، کون دیتا ہے دینے کو اونچا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے نبی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نا الہی اب یا رب، چھوٹے نا الہی اب، سنگ در جانانا، پیتے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، ہاں پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کرم کر دو،
جائیں جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ تو مانگے نبوت ہے جلوائے اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے واللہ روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن آقا تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماں ہے نبوت ہے جلوائے جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ مرحبا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5، 14 شعبہ جات، ان کے درمیان مقابلے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا انعامات بھی بڑھتے جائیں گے۔ نیت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان سلسلوں میں رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کریں اور روزانہ ہی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ مدنی پھول لے کر جائیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں قرآن اندازی۔ ایک بار پھر جو ناظرین بعد میں شامل ہوئے ہیں، ہم بتا دیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے شعبہ جات شامل ہیں۔ ذرا دکھائیے اسکرین پر کہ آج وہ کون سے 14 شعبہ جات ہیں جن کے درمیان ہونے جا رہی ہے قرآن اندازی۔ جی آج ہمارے ساتھ 14 شعبہ جات اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے مختلف پیارے پیارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں اسکرین پر ذرا دکھائیے۔ مدنی قافلہ، تعویذات عطاریہ، مدنی انعامات، جامعۃ المدینہ، مدنی چینل، مکتبۃ المدینہ، نعت خواں مجلس، مدرسۃ المدینہ آن لائن، شعبہ تعلیم، دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ، مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مجلس آئی ٹی۔ ان شعبہ جات نے شاید پہلے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اس طرح آمنے سامنے آ جائیں گے اور ہمارے درمیان بھی کبھی مقابلہ ہوگا۔ اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے۔ اس طرح انشاءاللہ ان شعبہ جات کے بارے میں بھی ہم جانتے رہیں گے، ناظرین بھی جانیں گے۔ سنا تو بہت ہے شعبہ جات کے بارے میں، ان شعبوں میں ہوتا کیا ہے انشاءاللہ انہی سے پوچھیں گے، مگر اب وقت ہوا ہے قرآن اندازی کا۔ جی تشریف لائیے، ہم انشاءاللہ 14 شعبہ جات کے درمیان کرنے جا رہے ہیں قرآن اندازی۔ سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں 2 شعبہ جات کے نام جن کا پہلا مقابلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ پہلا مقابلہ یعنی اتوار والے دن 23 نومبر کو 9:30 بجے جو پہلا مقابلہ ہوگا۔ جی جناب، پہلا شعبہ اس کا نام جس کے ساتھ لفظ مدینہ بھی آتا ہے۔ ارے یہ تو بہت سارے شعبہ جات ہیں، دعوت اسلامی کے تو تقریباً شعبہ جات کے ساتھ مدینہ لفظ آتا ہے۔ جی پہلا شعبہ ہے دارالمدینہ، ذرا زور سے کہیے دارالمدینہ کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں ماشاءاللہ، کچھ آپ سے بات چیت بھی کریں گے، آپ کا تعارف بھی لیں گے ماشاءاللہ۔ دارالمدینہ کا پہلا نام نکلا ہے، آ جائیے، سبحان اللہ۔ دوسرا شعبہ کون سا شعبہ ہے؟ چلے میں اشارہ دیتا ہوں، شعبہ آپ پہچانے، آپ اسے کچھ ذہنی آزمائش شروع کر دیتے ہیں نا۔ ایسا شعبہ جس کے ذریعے یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، جو گھر گھر میں موجود ہے، کون سا شعبہ ہے؟ جی مدنی چینل والے آ جائیں، مدنی چینل والے مقابلے کرواتے رہے، اب آپ خود آ گئے ہیں مقابلے میں، آ جائیں بھائی۔ اب مدنی چینل کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئیں۔ لگتا ہے آپ کے تیسرے اسلام میں نہیں پہنچ سکے ہیں، ٹھیک ہے، مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں اور دارالمدینہ والے بھی آ گئے ہیں، ذرا
جی آپ مائک لیجئے. ماشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 کی پہلی ٹیم دارالمدینہ کا نام نکلا ہے. ابھی پہلے ہیں یا آخر تک پہلے رہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل نگاہ مرشدی سے انشاءاللہ عز و جل آخر تک ساتھ رہیں گے. آخر تک ساتھ رہیں گے. بڑا حوصلہ لے کر آئے بھائی. دارالمدینہ والے پڑھے لکھے بھی بہت ہوتے ہیں, یہ میں بتا دوں. یہ اچھی جو ہے نا تیاری کر کے آئے ہوں گے اور تیاری ان کی مضبوط ہوگی. یہ بتائیں کہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زبیر اتاری المدنی. محمد زبیر اتاری. دیکھیں میرے میٹھے اسلام میں یہ بھی سیکھتے جائیے. دارالمدینہ بیسیکلی تو ایک اسکولنگ سسٹم ہے, اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے, مگر اس میں بھی مدنی اسلامی بھائی ہیں. علماء الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات سے پڑھنے کے بعد علماء کے لیے کتنے مواقع ہیں. نارملی کسی جامعہ سے کوئی فارغ ہوتا ہے, اس جامعہ میں تدریس کر سکتے ہیں, وہ امامت کر سکتے ہیں, کہیں جا کر خطابت کر لیتے ہیں. مگر دعوت اسلامی وہ حسین گلدستہ ہے کہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوں اور پھر اتنے سارے شعبہ جات آپ کے منتظر ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I would like to congratulate you on mashallah arranging this event, and it has been a memorable day for me and for my colleagues, other Islamic brothers. And my name is Hassan Malik, and I am with the Darul Madina Majlis. What's the responsibility in that particular majlis? I am looking after different matters specifically related to the academics and educational management. MashaAllah, your English is very well, but because we are doing that silsila in Urdu language, تو ہمیں اردو میں ہی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے تاکہ ہمارے اردو ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہے. ماشاءاللہ. جی آپ کا نام؟ محمد شعیب اتاری المدنی. ماشاءاللہ شعیب بھائی آپ بھی مدنی ہیں. آپ کی دارالمدینہ میں کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ تعالی مدنی استاذ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. یعنی وہاں علماء بھی ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ تعالی دارالمدینہ میں ابتدا سے ہی اب تک مدنی اسباق یعنی جو فرائض علوم سے تعلق رکھنے والے مضامین ہیں الحمدللہ وہ پڑھانے کی سعادت حاصل ہے ماشاءاللہ. اور ان میں فیضان اسلام جسے ہم اسلامیات کا نام بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ تعالی عربی زبان کو رائج کرنے کے لیے الحمدللہ تعالی عربی مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے. آپ عربی بھی پڑھاتے ہیں؟ بعض جو بڑے درجات ہیں مثلا جو ہمارے لیولز ہیں اور جو لیولز جو سینئر لیول ہے اور جو اس قابل ہو جاتا ہے تو الحمدللہ تعالی انہیں بھی عربی زبان میں پڑھایا جاتا ہے. بڑا خوبصورت مدنی گلدستہ بنا کر بھیجا ہے دارالمدینہ والوں نے. انگریزی بولنے والے, عربی پڑھانے والے, مدنی. سوچ لیجئے باقی جو ہمارے شعبہ جات ہیں تیاری مضبوط ہے, ہیرے چن کر بھیجے گئے ہیں. کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں آپ دارالمدینہ کے بارے میں؟ الحمدللہ تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا. ویسے تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے جہاں دیگر شعبہ جات ہیں الحمدللہ رب العالمین طرح دارالمدینہ جو ہے وہ بھی الحمدللہ مدنی منوں اور منیوں کو جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بہترین تربیت کا بندوبست بھی کیے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ عز و جل اس وقت ہمارے جو طلباء ہیں اسلامک اسکول سسٹم کے, ہمارے دیگر جو مطلب سسٹمز ہیں, تو الحمدللہ رب العالمین یہاں پر عربک جو لینگویج ہے انگلش لینگویج کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج بھی ہمارے ہاں اس پہ بھی فوکس ہوتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین ہمارے جیسے مدنی اسلامی بھائی ہیں تو وہ فرض علوم کے حوالے سے جو ہیں وہ مطلب بچوں کو سمجھاتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے دوسرے اسلامی بھائی ہیں وہ عربک لینگویج پر بھی فوکس کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا تاثرات کیا ہیں؟ پہلی بار ذہنی آزمائش میں آپ کا آنا ہوا ہے اور کیا فیلنگز ہیں آپ کی, کچھ بتائیں گے آپ؟ جی ہمارے مدنی اسلام میں پہلے بتائیں. الحمدللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی ہے اور بہت ساری اچھی نیتوں میں یہ بھی ہے کہ علم دین سیکھنے اور دوسرے اسلامی بھائیوں تک اس علم دین کو پہنچانے کا موقع مل رہا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس مدنی چینل کے ذریعے سے الحمدللہ اس شعبے دارالمدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے اس کے تحت انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کا مقصد ہے کہ ہر اسلامی بھائی کہیں بھی ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, وہ مبلغ دعوت اسلامی ہو. تو الحمدللہ ہم یہ ذہن بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہاں سے انشاءاللہ عز و جل پہنچانے آئے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل دارالمدینہ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں دعوت اسلامی, دین اسلام کی تبلیغ کر کے مبلغ دعوت اسلامی بن کر دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہیں. الحمدللہ. بھائی کو ذرا دیجیے گا, کیا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ فلاں شعبے کو تو ہرا کے جانا ہے, اس کو نہیں بڑھنے دینا آگے؟ الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے, مرشد کی تربیت ہے کہ الحمدللہ جب ہم اس
सिलसिले में शामिल हो रहे थे, जब हमने अपने नाम तजवीज़ किए थे और हमें अर्ज़ किया गया था, तो हम सब अच्छी अच्छी नीयतों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो वो तो अपनी जगह पे डेफिनेटली है। और एक ये भी है कि देखें, मुकाबले का रुझान तो होता ही है। इनफैक्ट अभी हमारे एग्जामिनेशन तकरीबन पिछले दिनों ही ख़त्म हुए दारुल मदीना के, हमने बच्चों के इम्तिहानात करवाए हैं, उस्तादों के इम्तिहान। उस हवाले से जो है वो यकीनन अपनी भी एक कैफियत है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है। और एक इंशाअल्लाह इनामात के हवाले से बहुत अच्छी तरकीब है कि आपने जो बुक्स के हवाले से जो अर्ज़ किया है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत खरीदेंगे किताबें इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। मदनियों के तो चेहरे पे मैं देख रहा हूँ मुस्कुराहटें हैं, कई अरमान होते हैं, ये किताब खरीदनी है, ये फतावा खरीदना है। अब देखें जितना आगे बढ़ते जाएंगे वैसी किताबें खरीदते जाएंगे। हमारे मदनी चैनल वाले भी माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अब यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, आज हो सकता है घरों में मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ जिनके ये टीचर्स होंगे वो भी बैठे होंगे। उस्ताद साहब, हमारा तो बड़ा इम्तिहान होता था, अब हमारे उस्ताद साहब का इम्तिहान है। तो चलें देखें आज हमारे उस्ताद साहिबान कहाँ तक जाते हैं। और भी उस्ताद आएंगे, आप फिक्र ना करें और आप टेंशन ना लें। अभी तो जामिया वाले आने हैं और भी मेरा ख्याल है शोबा जाते हैं जो किसी ना किसी के टीचर होंगे, निगरान होंगे किसी के। तो ये एक इंशाअल्लाह एक नई दिलचस्पी का सामान होगा। जी मदनी चैनल वाले अपना तारुफ पेश करें, अपना नाम बताएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद फ़ुरक़ान अत्तारी अल-मदनी है। मेरा ताल्लुक़ मदनी चैनल के शोबे फ़ाइनल तफ्तीश से है। अच्छा, तफ्तीश के शोबे वाले इस्लामी भाई आ गए हैं और मदनी भी हैं माशाल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नवीर अत्तारी अल-मदनी है माशाल्लाह। और मैं मदनी चैनल के शोबे मदनी ख़बरों में मदनी ख़बरें एडिट और तफ्तीश करता हूँ। मदनी ख़बरें जो नाज़रीन आप देखते हैं, पीछे एडिट कौन करता है, इसमें से एक इस्लामी भाई ये हैं। हमारे सिलसिलों में एक बड़ी खूबसूरत बात है जो नाज़रीन को शायद ना पता हो, हम आपको अंदर की बात राज बताते हैं आज, कि जो तफ्तीश की बात इन्होंने की, हो सकता है आप कहें ये तो पुलिस स्टेशन में तफ्तीश होती है, ये मदनी चैनल में कौन सी तफ्तीश होती है। जी हाँ, दावत इस्लामी का एक शोबा है मदनी चैनल में जिसमें हमारे मुफत्तिशीन, थोड़ा मुश्किल हो गया ना, चेकिंग करने वाले, चलें आसान कर देता हूँ, मुफत्तिशीन जो होते हैं वो सिलसिलों की तफ्तीश करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्योंकि चूंकि हमारा चैनल सारी दुनिया में देखा जाता है, मजहबी चैनल है, कोई गलती ना हो जाए, बाज़ औक़ात जुमला कोई गलत निकल जाता है मुबल्लिग से, कभी कोई आयत हदीस पाक में मिस्टेक ना हो जाए, तो हमारे ये मदनी इस्लामी भाई उसको चेक करते हैं। एंड दे हैव अथॉरिटी, इनके पास ये इख्तियार है कि चाहे कोई भी मुबल्लिग क्यों ना हो, अगर उसकी कोई शरई गलती है, ये उस सिलसिले को, उस बयान को रोक लें, उसको कट ऑफ करें, उसकी तसी करें, उसके बाद ये चाहें ऑन ईयर करें। यानी मुफत्तिशीन की इजाज़त के बगैर हमारे सिलसिले ऑन ईयर जो बाद में रिपीट चलते हैं या रिकॉर्डेड चलते हैं वो नहीं चल सकते। मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी चैनल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतज़ाम हो कि शरई तौर पर इतनी स्कैनिंग के बाद, इतनी तफ्तीश के बाद ये सिलसिला ऑन ईयर हो। ज़रा ये बताएंगे कितने मुफत्तिशीन है मदनी चैनल में, अगर आपको तादाद पता हो। माइक लीजिएगा। कमोबेश 15 से 20 इस्लाम भाई, 15 से 20 मदनी उलमा हैं जो मदनी चैनल के सिलसिलों को चेक करते हैं। जी कुछ बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश? आप लोग हो सकता है पहले एडिट करते हों, सवालात बनाते हों, आज खुद मैदान में आ गए आप। बस निगाह मुर्शिद से मजलिस ने नाम तजवीज़ किया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मजलिस के जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरे। जी तवक्कुआत तो बड़ी होंगी, पता नहीं कौन कौन सी मजलिस कहाँ कहाँ देख रही होगी, दुआएं भी हो रही होंगी। चलें बहरहाल माशाल्लाह हमारे तीसरे इस्लामी भाई का नाम भी पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी माशाल्लाह। निगरानी शुरा मकतब में अल्हम्दुलिल्लाह एडिट वगैरह और इस तरह के मामलात मेरे ज़िम्मे हैं। तीसरे इस्लामी भाई चूँकि हमारे मौजूद नहीं है। अच्छा, तो आप उनके नेमल बदल के तौर पर आज तशरीफ ले आए हैं। चलें, जगह पूरी कर ली है। ये याद रहे कि जब मुकाबला शुरू हो जाएगा, ये मजलिस से रूल आज सुन लें कि जब मुकाबला शुरू हो जाएगा उसके बाद इस्लामी भाई तब्दील नहीं किया जा सकेगा। आप जो 3 इस्लामी भाई पहले मुकाबले में आ जाएंगे वही आखिर तक चलेंगे। हाँ, किसी शरई मजबूरी की बिना पर कोई मामला हुआ तो मजलिस ज़हनी आजमाइश जो है उससे परमिशन लेनी होगी ताकि ये किसी तरह भी कोई मुकाबले में ऐसी बात ना हो। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वापस तशरीफ रखें। दारुल मदीना बा मुकाबला मदनी चैनल पहला सिलसिला तय हो चुका है जो कि 23 नवंबर को होगा। जी जनाब, सीज़न 5 का पहला मुकाबला ही पड़ गया है मदनी चैनल का दारुल मदीना से। याद रहे, इस पहले मुकाबले में जो पीछे रह गए, ऐसा नहीं होगा कि हम पहली बारी में ही आपको घर भेज देंगे। हमारे हर शोबे को 2 मौके मिलेंगे। जो जीतते जाएंगे, यानी जो पहले 7 मुकाबले होंगे उसमें आगे जाने वाले 7 टीम्स पहुंच जाएंगी क्वार्टर फाइनल में, मगर जो पीछे 7 रह जाएंगी उन्हें मौका मिलेगा। वो कैसे मिलेगा
آسان موقع نہیں ہوگا, تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آپ ہی پیچھے رہے تھے تو اب تھوڑی مشکل تو اٹھانی پڑے گی, وہ تھوڑی دیر بعد بتائیں گے. آئیے جناب, دوسری قرآن اندازی, دوسرا مقابلہ کس شعبے کا ہوگا, کس شعبے کے ساتھ؟ جی جناب, سبحان اللہ. اب جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے دوسرا, پہلا شعبہ ہے اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ کے اسلام میں تشریف لے آئیں, ماشاء اللہ. اور ان کا مقابلہ پڑھنے جا رہا ہے, بڑی زبردست مجلس ہے ہماری, اور بڑی جس کو آپ کہیں کہ ٹیکنیکل مجلس ہے, یعنی بالکل الگ الگ شعبوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ناظرین, اگر ان کا ہوتا المدینہ العلمیہ سے تو ہم کہتے جناب دو علمی شعبے آمنے سامنے آ گئے ہیں, لیکن ان کے سامنے آ گئی ہے ہماری بڑی ٹیکنیکل مجلس, مجلس برائے آئی ٹی کے اسلامی بھائی تشریف لے آئیں, اور جامعۃ المدینہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں آئی ٹی. لیکن آئیے تشریف لائیں, ماشاء اللہ, مرحبا. جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی تعارف اپنا باری باری پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راشد نور اتاری المدنی. ماشاء اللہ. راشد بھائی, آپ کا کس جامعہ سے تعلق, وہاں کیا ذمہ داری ہے؟ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں ناظم پلس مدرس کے طور پر میں. ماشاء اللہ, ناظم بھی ہیں, مدرس بھی ہیں. جی جناب, آپ کے طلباء آئے تھے ذہنی آزمائش میں, آج ناظم صاحب بھی آ گئے ہیں, ماشاء اللہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ محسوس بالکل وہی, جب طلباء کا سلسلہ دیکھ رہے تھے اس وقت بھی تقریباً یہ نیت بن رہی تھی کہ ایک تصور تھا کہ شاید ہم بھی یہاں پر آئیں. اللہ, کنفرم نہیں تھا, تصور تھا, لیکن الحمدللہ نیت یہی بنی. اور اب بھی کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم ہرائیں گے, آگے جائیں گے, یہی کہ چلو ہمارے بچوں کے ذریعے علم دین گیا, اور یہی انشاءاللہ ہم بھی کوشش یہی کریں گے کہ علم دین ہمارے ذریعے سے. دیکھیں کتنی پیاری نیتوں کے ساتھ اسلامی بھائی آئے ہیں کہ کسی طرح آپ کے پاس بھی علم دین کے مدنی پھول پہنچائے جائیں. کتنے بیزی اسلامی بھائی ہیں, نظامت ہے, تدریس ہے, مگر یہ سلسلہ کرنے آئے تاکہ آپ تک پہنچیں. جی حضور. محمد نوید اتاری, میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کریم آباد سے. ہائے ہائے, فیضان عشق رسول, نام ہی اتنا پیارا, سبحان اللہ. تو آپ تو ذرا ہمیں ذرا کچھ عشق رسول کی باتیں بھی سلسلے کے دوران آپ سے لیں گے. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ذہنی آزمائش, جیسے سلسلے کا نام ہے ذہنی آزمائش, تو اس میں آزمائش بھی ہے اس اعتبار سے کہ جیتنا ہے. تو نفس کے اعتبار سے باپا نے جیسے مدنی مذاکرے میں تربیت فرمائی تھی کہ یہ تو آپ نے بھی سنا تھا کہ یہ سیدھی سیدھی دنیا داری ہے, اگر جیتنے کی نیت سے جائیں گے, اگر اس نیت سے. اگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہفتہ اتوار کو ہمارا یہ شروع ہوگا, تو ہفتے کو باپا سے اگر مدنی مذاکرے میں اس کی نیتیں لے لیں, سبحان اللہ, کہ ہم کن نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کریں. اللہ, چلیں بھائی آپ آئیے سلسلے مذاکرے میں, اور باپا سے آپ ہی سوال کریں, اور اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس یہ سوال اگر ریکارڈ کر چکی ہو تو مذاکرے میں بھی چلا دیا جائے. ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہے. دیکھیں یہ بھی فکر ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں, کہیں نفسانی خواہشات, کہیں دنیاوی نیتیں تو نہیں ہیں. نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس سلسلے کا بھی ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عارف رضا اتاری, جی, جامعۃ المدینہ فیضان مصطفیٰ. ماشاءاللہ. آپ کیا ذمہ داری وہاں پر؟ نظامت. آپ بھی ناظم ہیں, ماشاءاللہ, مرحبا. جی, ہمارے آئی ٹی مجلس کے اسلامی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد انجم, آئی ٹی مجلس. آئی ٹی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ عربی شعبہ میں ذمہ داری. اچھا, آئی ٹی میں عربی شعبہ بھی ہے جو عربی ویب سائٹ کے معاملات کو دیکھتا ہے. جی, عربی ویب سائٹ, عربی سوشل, اسی طرح دیگر ٹرانسلیشن. جی, اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذاکر ابراہیم اتاری, ماشاءاللہ, اور آئی ٹی کا ایک شعبہ ہے کانٹینٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری ہے الحمدللہ. ٹھیک, آپ کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان علی اتاری, آئی ٹی مکتب کا انفراسٹرکچر شعبہ میں کسٹمر سپورٹ آفیسر کی ذمہ داری. جناب, کسٹمر سپورٹ والے بھی آئے ہیں, بڑے زبردست لوگ آئے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں, کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ ذہنی آزمائش کی آپ لوگوں نے پروموشن کی تھی سیزن 3 سیزن 4 کی, اب آپ خود سیزن 5 میں آ گئے ہیں, تو کچھ فرمائیں, کیسے فیلنگز ہیں آپ کی؟ الحمدللہ, فیلنگس تو اچھی ہیں کہ نیکی کی دعوت دینے کا حصہ بننے کا موقع بھی مل رہا ہے الحمدللہ, اور کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی ہیں, اور مزید انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی تربیت ہوگی.
इंशाल्लाह वो नियतें भी शामिल कर ली एक जाएंगी। बात बताएं, जब आप यहाँ आए थे मुझे लग रहा था बड़े रिलैक्स थे, लेकिन जब आपका मुकाबला जामिया से पड़ गया है तो मैं थोड़ा सा टेंशन देख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तैयारी मजबूत है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मजबूत है, टेंशन में कोई नहीं है भाई, सबकी तैयारियां मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखें। इंशाल्लाह अगले शोबे की तरफ हमने चलना है, बड़ी मेहरबानी, मरहबा, माशाल्लाह। अगला मुकाबला हो रहा है मदनी जामियातुल मदीना का IT वालों से। जी जनाब, पीर वाले दिन 12 24 नवंबर को जो मुकाबला होगा वो होगा जामियातुल मदीना बमुकाबला मजलिस IT। जी अब चलते हैं तीसरी कुरानदाजी की तरफ, देखते हैं किसने आना है किसके सामने। ठीक, दोनों पर्चियां आ चुकी हैं मेरे पास। इससे पहले कि मैं नाम पढ़ूं, बताया जा रहा है कि कॉल लेनी है सिलसिले में। चलें जनाब, कॉल शामिल करते हैं। बताइए कौन है ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 की पहली कॉल? आइए सुनते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मोहम्मद अकरम अतारी है, नूर कॉलोनी हवेली लखा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़हनी आज़माइश की बरकत से जो सिलसिला है हमें दीन के बारे में मालूमात हो रही हैं। हमें दावत इस्लामी के जो शोबा जात हैं वो हमने सुने हुए थे कि इतने हैं, लेकिन उनके मतलब है कि वो काम जो है उनके बारे में पता चल रहा है और दीनी मालूमात हो रही हैं। तो मदनी चैनल का ये बहुत ही प्यारा सिलसिला है, बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो इस पर मुबारकबाद भी दूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दुआओं में भी याद रखें और देखते रहें, अपने घर वालों के साथ देखें इंशाल्लाह। बहुत कुछ ख़ास तौर पे अपने घर में मदनी मुन्नों को भी दिखाएं तो इंशाल्लाह उनकी मालूमात में, उनके शौक़ में भी इजाफ़ा होगा कि दावत इस्लामी में किस कदर मौक़े हैं दीन की खिदमत करने के। अब जनाब अगला मुकाबला वो शोबा जिसका ताल्लुक़ इल्म से, तालीम से है। मेरी मुराद शोबा तालीम। जी शोबा तालीम, आप हो सकता है सोचें जब जामियातुल मदीना अलग है, दारुल मदीना अलग है, तो शोबा तालीम क्या करता है? मैं क्यों बताऊं, इन्हीं से पूछेंगे क्या करता है। आइए जनाब शोबा तालीम के इस्लाम भाई, माशाअल्लाह, मरहबा। इनका मुकाबला होगा वो मजलिस जिस मजलिस के नाम के साथ ही अमीर अहले सुन्नत का नाम आता है। जी हाँ, ये शायद मुझे याद पड़ता है कि एक आध मजलिस ही है कि जिनका नाम के साथ अमीर अहले सुन्नत का नाम आता है। तावीज़ात अत्तारिया, सुभान अल्लाह, तावीज़ात अत्तारिया के इस्लामी भाई माशाअल्लाह, तशरीफ लाइए। चलें जनाब, एक तरफ तालीम, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में खिदमत करने वाले, दूसरी तरफ उम्मत का गम दूर करने की कोशिश करने वाले, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए। जी हुजूर, तारुफ करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद रज़ा अत्तारी। बगदाद रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। आपकी क्या जिम्मेदारी है इस मजलिस में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहरिया यूनिवर्सिटी में जिम्मेदारी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जिम्मेदारी है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ग़ुलाम नबी अत्तारी है और शोबा तालीम से मैं वाबस्ता हूँ और बाबुल मदीना की यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है। बाबुल मदीना की यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी है। गुलाम नबी भाई, आपसे हम पूछेंगे भी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ में आप करते क्या हैं। पहले हमारे अगले इस्लाम पे का तारुफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद आबिद रज़ा अत्तारी अल मदनी, कराची यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी। कराची यूनिवर्सिटी में आपकी जिम्मेदारी, यूनिवर्सिटीज़ की बाबुल। गुलाम नबी भाई कुछ माइक लीजिए, बताइए हमारे नाजरीन को शोबा तालीम तफसीली इंशाल्लाह हर शोबे का तारुफ हम एक पैकेज के ज़रिए भी, मदनी गुलदस्ते के ज़रिए भी आपको जब सिलसिला इनके ये मुकाबले शुरू होंगे दिखाएंगे, मगर कुछ थोड़ा सा इशारा दीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ में आप क्या करते हैं, क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले तो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का फरमान है कि तलबा मुल्क और मिल्लत का कीमती सरमाया होते हैं। ठीक, मुस्तकबिल में कौम की भागदौड़ यही संभालते हैं। अगर इनकी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक तरबियत कर दी जाए तो सारा माशरा खौफ खुदा अज़्ज़ व जल व इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा बन जाए माशाअल्लाह। तो इसी अमीर सुन्नत के फरमान को लेकर हम यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में जाते हैं माशाअल्लाह, और वहाँ तलबा को नेकी की दावत देना, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दर्स, मदरसतुल मदीना कायम करना, ये सिलसिला हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना के काफ़ी प्रोफेसर और डॉक्टर्स माशाअल्लाह और स्टूडेंट वगैरह शोबा तालीम में अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद गुलरेज़ अत्तारी। मोहम्मद गुलरेज़ अत्तारी, आपकी तावीज़ात अत्तारिया मजलिस में क्या जिम्मेदारी है? तावीज़ात अत्तारी के इस्तिखारा मकतब में जी ऑनलाइन इस्तिखारा किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो रूहानी इलाज मजलिस। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी मोहम्मद जाहिद अनवर अत्तारी,
बस्ता ज़िम्मेदार हैं और हमारे शोबे में तरबियत का एक शोबा है जिसका रुकन है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सैयब रज़ा अत्तारी मेरा नाम है और रुकने काबिनात मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे पहले इस्लामी भाई को दे, इन्होंने अपना तारुफ करवाते हुए बताया इस्तिखारा मकतब में। ये बताएं आज इस्तिखारा किया था आपने कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे, किस सिलसिले में, कि कौन सा इनाम लेके जाएंगे? नहीं, इस वाले से नहीं किया, इस्तिखारा नहीं किया। अच्छा ये वैसे बताएं, अब ये तो डरते होंगे यार, ये तावीज़ वाले हैं, कोई तावीज़ कर देंगे हमारे ऊपर, तो ऐसा भी कोई सिलसिला होता है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अमीर अमरकातमाली यानी उम्मत के रहनुमाई की जो तावीज़ात तारीख़ का सिलसिला शुरू किया, तो ये ज़ाहिर उम्मत की रहनुमाई तब ही होगी जब तावीज़ात उनको उनकी बेहतरी के लिए दिया जाए। ठीक है, यानी ऐसा करते हैं आप, अगर ये कोई टीम आ जाए आपके पास, कोई ऐसा तावीज़ दे दें हम जीत जाएं, सामने वाला हार जाए, इस तरह के तावीज़ भी होते हैं हमारे पास? नहीं, ऐसा कोई तावीज़ नहीं। हमें किसी को हराने के लिए, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हमारी तरफ से इसमें दो नीयतें होती हैं, जैसे एक किसी को हराने के लिए और दूसरा खुद हम जीत जाएंगे, तो खुद जीत जाएं तो इस वाले से। लेकिन किसी को हराने की नीयत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी नीयतों के साथ यहाँ तावीज़ दिए जाते हैं। ये मैंने सवाल इसलिए जानबूझ के किया कि आजकल जिस तरह जाली आमिल के फ़लाँ को नीचा दिखा दें, फ़लाँ के साथ आपका जो दुश्मन है वो जनाब तबाह हो जाए, और इस तरह के तावीज़ात ना हमारे बस्ते से दिए जाते हैं। हमारे यहाँ उम्मत की खैर खाही के लिए, बेहतरी के लिए, बीमारियों की दूरी के लिए बहुत सारे दीगर मामलात हैं। तफसील इनसे इंशाअल्लाह ज़रूर लेंगे जब इनका सिलसिला शुरू होगा, और उसमें इंशाअल्लाह ये तारुफ भी आपको बताएंगे कि हमारा ये शोबा करता क्या है और कितने तावीज़ात। आप जब सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे जब इंशाअल्लाह इनका मुकाबला होगा। तो जनाब तीसरा मुकाबला होगा शोबा तालीम और हमारी मजलिस तावीज़ात अत्तारिया। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह। अगली कुरानदाजी। जी जनाब चलें, अगली कुरानदाजी के लिए पर्चियाँ लाइए। हमें एक कॉल भी दे दीजिए, हम पर्ची पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉल सुनते हैं। जी जनाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब मैं कारी मोहम्मद रमज़ान सुल्तानी अरब शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। भाई साहब मैं तो इस आपके प्रोग्राम का बहुत अरसा से इंतज़ार कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम फरमाया और मदनी चैनल पर आपका प्रोग्राम जो है ज़हनी आज़माइश आ गया। तो ये आपकी जो टीमें हैं, हमको तो पूरी दावत इस्लामी से मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन मैं अपनी टीम मुंतखब कर ली है। मेरी टीम नात खानों की है और नात खान इस्लामी भाइयों के साथ मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब फरमाए और वो फाइनल में आए और फाइनल जीते। और ऐसे बहुत खुशी है, बहुत ही आला प्रोग्राम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मदनी चैनल को दिन रात और इसको तरक्की अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें भाई, अरब शरीफ से नात खानों के लिए मुंतखब भी कर लिया। चलें आज से हम ये भी आपको मौका देते हैं, आप कॉल करें और बताएं आप किस टीम के साथ हैं और किसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो एक और दिलचस्पी का सामान होगा। अरब शरीफ से वो शायद ये चाह रहे होंगे कि इनसे मिलना होगा, ये जीत जाएंगे तो अरब शरीफ आ जाएंगे, तो इनकी भी मुलाकात हो जाएगी। चलें, आपकी दुआएं हैं, लेकिन ये ना सोचें इनके लिए भी दुआएं करने वाले बड़े हैं भाई। ये जामिया के असातिज़ा हैं, पता नहीं कितने तलबा को बिठा के आए होंगे, तो अब पता नहीं है कि कौन कहाँ पहुँचता है। अब आ रही है अगले शोबे की बारी, मकतबतुल मदीना। सुभान अल्लाह, वो शोबा जिसको बापा फरमाते हैं दावत इस्लामी का दिल। जी हाँ, मकतबतुल मदीना तशरीफ़ ले आए इंशाअल्लाह। और इनका मुकाबला है एक ऐसे शोबे से जो बड़ी ज़बरदस्त दावत इस्लामी की कह सकते हैं ईजाद है। जी हाँ, इन्वेंशन है दावत इस्लामी की, और वो है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के इस्लामी भाइयों का मुकाबला होगा मकतबतुल मदीना से। जी तशरीफ लाइए, माशाअल्लाह, मरहबा। मकतबे वाले इस्लामी भाई अपना तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अमीन हैदर अत्तारी और मकतबतुल मदीना के कारकर्दगी के हवाले से उसकी माशाअल्लाह। अमीन हैदर भाई मकतबतुल मदीना की कारकर्दगी के मामलात को देखते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद बिलाल अत्तारी, शोबा फॉलो अप के हवाले से। शोबा फॉलो अप। अच्छा, देखें ये शोबा कैसा ज़बरदस्त है कि जो काम हो गए उसका फॉलो अप करें। अब ये देखें हमें कितना फॉलो अप करते हैं, जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान अत्तारी, बाबुल मदीना कराची जिम्मेदार। बाबुल मदीना कराची की आपके पास जिम्मेदारी है। जी मकतबतुल मदीना, वैसे एक बात बताऊं, ये एक शोबा है जो फाइनल तक हमारे साथ रहेगा।
हाँ घबराइए नहीं, ऐसा ना आप समझिएगा कि हमने चूज़ कर लिया इनको, ये चले भी जाएं इनका मकतबा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मकतबे की किताबें इंशाल्लाह हम फाइनल तक देते रहेंगे। तो इस शोबे को ये तसल्ली रहेगी कि रोज़ाना हम मकतबे का नाम ज़रूर लेंगे। जी जनाब। सैयद बिलाल रज़ा अत्तारी, माशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में जो हमारी शिफ्ट मदनी है, सुबह 8 से 4 बजे तक शिफ्ट नाज़िम की सैयद से अपनी खिदमत सर अंजाम माशाअल्लाह। सुबह 8 से 4 की जो शिफ्ट है। जी नाजरीन, हमारे बहुत सारे इस वक्त नाजरीन वो होंगे जो मदरसा ऑनलाइन में पढ़ते होंगे, उस्ताद साहब को देखा नहीं होगा, अब कुछ असातिज़ा आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। जी मदनी मुन्नियों को इस्लामी बहनें पढ़ाती हैं, मदनी मुन्नों को ये पढ़ाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यासिर रज़ा अत्तारी अलमदनी। माशाअल्लाह। मेरी ज़िम्मेदारी शिफ्ट नाज़िम, जो रात की शिफ्टें हैं मदरसा मदीना पूरी रात, उसमें शिफ्ट निज़ामत की मेरी तरकीब है, और इसके अलावा ऑनलाइन की मुख्तलिफ मजालिस हैं, उसमें मजलिस तफ्तीश की ज़िम्मेदारी भी। चलें भाई, ऑनलाइन में भी मजलिस तफ्तीश है। हम ये क्यों तफ्तीश करते हैं कि जो पढ़ाया जाता है ऑनलाइन उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है और उसको भी चेक किया जाता है कि उस्ताद साहब जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो माशाल्लाह ये उस मजलिस के इस्लामी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शबीर रज़ा अत्तारी, मैं मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में मजलिस तफ्तीश में खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। चले मजलिस तफ्तीश के इस्लामी भाई आ गए हैं। देख लें जनाब, ये मकतबे वालों के सामने जो है दो तो मुफत्तिशीन आ गए हैं। अब देखें तैयारी किसकी मजबूत है। एक आपको आसानी है, वैसे हमारे सवाल जिन किताबों से होने वो किताबें आपके पास ही हैं, तो आपको तो वैसे ही याद होनी चाहिए, मकतबे वाले हैं। तो अब मकतबे वालों को नहीं याद होंगी तो फिर कैसे होगा मामला। बहरहाल सवाल भी होंगे, उनके जवाब भी लेंगे। क्या फीलिंग्स है बिलाल, आप कुछ बताएंगे कि आज मकतबतुल मदीना भी ज़हनी आजमाइश में आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचा तो नहीं था इस तरह, जब मजलिस थोड़ा माइक करीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह जब मजलिस ने नाम लिया तो उस वक्त अलग ही कैफियत थी, और अब यहाँ आकर भी एक अलग ही कैफियत है। ऐसा फील हो रहा है, आपको बोलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा ये बताएं, कहाँ तक जाने का इरादा है, कितने? क्योंकि आपने तो लेने भी मकतबे से खरीदारी करनी है, अपने ही शोबे से जाके कितने वाला चेक लेके चले जाएंगे हमारे पास से? कोशिश है कि तमाम मराहिल को पार करें और अल्लाह करे कि मदीने जाएं। सुभान अल्लाह। हमारे ऑनलाइन वाले जनाब, मुझे तो लगता है ऑनलाइन में आज बच्चे कहीं चैनल पे ना बैठे हों कि हमारी मजलिस भी आज आ गई है, और हज़ारों हज़ार इस्लामी भाई मदनी मुन्नियाँ हमारे इस सिलसिले में शामिल हैं। तो माशाअल्लाह आप सबको मरहबा कहते हैं। अगला मुकाबला होगा इंशाअल्लाह हमारे मकतबतुल मदीना और मजलिस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जगह पे तशरीफ़ रखिए। बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब, ज़रा दुरूद पाक तो ज़ोर से पढ़े ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब। जी अगली इंशाअल्लाह हम कुरानदाजी करने जा रहे हैं। अब देखें कि किसका मुकाबला है किससे। इसी तरह के पहले हम पर्ची उठाएं। आइए एक कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बैद फरमान अत्तारी खानेवाल शहर से बात कर रहा हूँ। मदनी का सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत ही अच्छा है, और आज का मौजू शोबा जात के हवाले से आजमाइश का सिलसिला बहुत ही प्यारा है। इल्म दीन के बेशुमार अनमोल मोती और मालूमात खजाना हमारे हाथ आ रहा है। अल्लाह हमें सिर्फ और सिर्फ मदनी चैनल देखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अब एक शोबा देखिए, वैसे तो सारे शोबे खुसूसी हैं, स्पेशल हैं, मगर अब जिस शोबे को मैं बुला रहा हूँ, जिनका नाम निकला है, उस शोबे का नाम ही खुसूसी है। जी हाँ, मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई। और ये शोबा हमारे इस सिलसिले का यूँ समझ लें सबसे अनोखा शोबा होगा। और ये इस्लामी भाई हमारे पास आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इनको लेकर आऊँ। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, 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 मरहबा। जी ये 3 इस्लामी भाई नहीं, ये 4 हैं। ये 4 क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनका मुकाबला होने जा रहा है मजलिस मदनी काफिला से। मजलिस मदनी काफिला के इस्लामी भाई तशरीफ लाइए। मरहबा। गुलाम शब्बीर भाई हमारे साथ हैं और कुछ इशारे भी कर रहे हैं। गुलाम शब्बीर भाई माइक पहले आप लीजिए, आप बताइए कि सब 3 हैं, आप 4 क्यों हैं भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ जो खुसूसी इस्लाम भाइयों में इस्लाम भाई शामिल हैं टीम के अंदर, इनमें एक इस्लाम भाई ऐसा भी है जो डेफ है।
अच्छा, जो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। अच्छा, सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो ये मुकाबले में हिस्सा कैसे लेंगे आप? उनके साथ कुछ ताउन करेंगे? इंशाअल्लाह में पूरी कोशिश आप करूंगा। उनको इशारों के जरिए हमारा ये सिलसिला समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उनका नाम जो ये बीच वाले इस्लामी भाई हैं दरमियान में जो है, जी इनका नाम उमेर है। अच्छा, इन्होंने नाम उमेर इशारों। देखे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यहाँ मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, दावत इस्लामी हर इस्लामी भाई की, तमाम मुसलमानों की तहरीक है। वो अफराद जो बोल नहीं सकते, वो इस्लामी भाई जो देख नहीं सकते, वो इस्लामी भाई जो माजूर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी उनके अंदर भी काम कर रही है। और हमने आज अपने इस सिलसिले में उन्हें भी शामिल किया है। मेरे एक इस्लामी भाई हैं जो आप बारी बारी ज़रा नाम आप बताइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सफदर नियाज अत्तारी है। मोहम्मद सफदर नियाज भाई, आपके पैर में शायद प्रॉब्लम है, तो आपको खड़े होने में भी प्रॉब्लम होगी फिर? नहीं। हाँ, हम इंशाल्लाह नियत करते हैं कि अगर हमारे जब इनका मुकाबला हो तो इनके लिए कोई ऊंची चेयर का हम इंतज़ाम कर लेंगे ताकि आप सुकून के साथ हमारे सिलसिलों में शामिल हो सके। तो सफदर भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप यहाँ ज़हनी आजमाइश में हमारे साथ हैं? बहुत खुशी हुई है कि हमें भी मौका मिला है कि हम भी, जैसे हमारा मदनी मकसद है कि अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो इसी तरह हमें भी मौका दिया गया है कि ताकि हम भी जितना हमसे हो सकता है माशाअल्लाह आमाल के एतबार से, इखलाकियात के एतबार से, और इसी तरह कुछ मसाइल वगैरह जो हम खुद याद करें और जो कुछ हमारे पास है वो दूसरों तक पहुंचा अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे पैर में आपके ये प्रॉब्लम है, आपको चलने में भी मैंने देखा मुश्किल होती है, लेकिन दावत इस्लामी के माहौल में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं माजूर हूँ तो इसलिए मुझे आगे नहीं आने दिया जाता, या कुछ आपको एहसास कमतरी का, कोई ऐसा हकारत वाला किसी का माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में ऐसा कुछ नहीं है कि यानी बंदा एहसास कमतरी का शिकार हो, बल्कि यहाँ जो है हमें ज़्यादा ही तवज्जो दी जाती है, और जो भी हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, असातिज़ा हों और नाज़िमीन कराम हो। इसी तरह जो भी आप जामिया में पढ़े भी हैं? जी, पढ़ते हैं हम। कितने, कौन से दर्जे में आप? दर्जा सादसा में। जी जनाब, छठे दर्जे में ये तालिब इल्म है माशाअल्लाह, और कुछ ही सालों के अंदर ये आलिम दीन बन जाएंगे। ये है आपकी दावत इस्लामी। जी, अगले इस्लामी भाई गुलाब शबीर भाई, आप माइक लीजिए, इनसे इनका नाम ज़रा दोबारा पूछिए। अपना नाम बताइए। नाम इन्होंने इशारा की है UMAIR। अल्लाह, उमैर। अच्छा, ये इन्होंने इंग्लिश में अपने अल्फ़ाबेट्स बताए हैं। अच्छा, इनसे पूछें कि ये कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर आकर? शुरू में पहले 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मैं ककरी ग्राउंड में एक दफ़ा गया था। हाँ। अपने कज़न के साथ। वहाँ पे मैंने दावत इस्लामी को देखा, और वहाँ पर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को भी देखा। अमीर सुन्नत मंच के ऊपर जब मैंने उनको देखा तो मैं हैरान रह गया। इंतहाई खूबसूरत हसीन चेहरा, मदनी लिबास, मरहबा की दुमें मचा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, दिल बहुत खुश हुआ। मैं भी सोचने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता फैज़ान मदीना में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। अमीर सुन्नत को सब्ज़ इमामा, गुंबद खज़रा की रंग वाला इमामा शरीफ पहने हुए जब देखा, मदी हुलिये में देखा, तो मैं भी सोच में पड़ गया। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नियत कर ली और शुरू कर लिया कि मैं भी मदनी हुलिये में रहूँगा। आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे 8 साल हो गए, मैं पहली दफ़ा यहाँ पर इस मुकाबले में शिरकत कर रहा हूँ। ये सब पहले डेफ के साथ तो मैं कंपटीशन में हिस्सा लेता था, लेकिन पहली दफ़ा अपने अमूमी इस्लामियों के साथ में कंपटीशन क्या कर रहे हैं? इनको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। देखिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये है दावत इस्लामी। इनको पूछे ये करते क्या हैं, इनकी इस वक्त ज़िंदगी कैसे गुजर रही, किस जिम्मेदारी पर हैं आप?
बाबुल मदीना के यूँ समझ के 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ डेफ को, एक हिस्सा पूरे बाबुल मदीना का मेरे पास है, मैं दावत देता हूँ। अल्लाह, अब देखिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और डेफ इस्लामी भाइयों में दावत इस्लामी का पैगाम पहुँचा रहे हैं। अगले इस्लामी भाई जो हमारे साथ हैं ये बीनाई से महरूम हैं, ये देख नहीं सकते मगर चूँकि ये सुन सकते हैं तो हम बराह रास्त इनसे ही बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अरशद अली अतारी। अरशद खलीक अत्तारी। आप अरशद अली अत्तारी। अरशद अली अत्तारी। आप मदनी भी हैं? मुर्शिद की माशाल्लाह, आप दरसे निज़ामी कर चुके हैं, मुझे पता है। माशाल्लाह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये वो इस्लामी भाई हैं जो दौरे हदीस से भी फारिग हो चुके हैं माशाल्लाह, और इनकी बीनाई नहीं है। आँख वाले जो मेरे इस्लाम में देख रहे हैं, अब जो हमें इल्म दीन हासिल करने में सुस्ती होती है, गौर कीजिए इन्होंने 8 दर्जे कैसे पढ़ा होगा, इम्तिहानात कैसे दिए होंगे, उसकी तैयारी कैसे की होगी, और आज इनकी दावत इस्लामी ने करोड़ों नाजरीन के सामने इन्हें पहुँचाया है। कैसा महसूस कर रहे हैं अरशद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया की निगाह करम से सिलसिला ज़हनी आजमाइश में हाज़री की सादत हासिल हुई है। ये वाकई एक आजमाइश वाला मरहला है। इस्लामी भाई मुझे इरशाद फरमा रहे थे कि अब्दुल हबीब भाई की तरफ से आपको नामज़द किया गया है। मैं यहाँ ऊपर आया तो इस्लामी भाई कहने लगे कि आप जीतेंगे या हारेंगे। मैंने कहा हम हाज़री देने आए हैं, जीते हारने का यहाँ क्या सवाल है। बस मुर्शिद की बनाई हुई तहरीक आज इस उरूज पर है, अल्लाह ताला इसे उरूज ही पर रखे। आमीन आमीन। माशाल्लाह, तो तैयारी है ना आपकी सवालात के जवाब देने की? इंशाल्लाह। हाँ, खुसूसी इस्लामी भाई भी पीछे नहीं है जनाब। और अब तावीज़ात नहीं, आप यहाँ जो शोबा है मजलिस जी मदनी काफ़िला वाले, सारी दुनिया में काफ़िले रवाना करने वाले आज हमारे हाथ आए हैं। चलें जनाब, नाम बताइए अपना अपना, सब पर इनफरादी कोशिश करके नाम लिख लेते हैं, आज हमने इनको पकड़ लिया है। जी जनाब। मोहम्मद उस्मान अत्तारी। मजलिस काफ़िला के तहत एक मजलिस है, मजलिस कोर्सेज, उसमें मदनी नामत और मदनी काफ़िला कोर्स में बहैसियत मुअल्लिम। माशाल्लाह, ये मदनी काफ़िला मदनी नामत कोर्स आप सुनते हैं ना, ये कोर्स करवाने वाले इस्लामी भाई हैं। चले माशाल्लाह, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद सखी हुसैन अत्तारी। जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मदनी काफ़िला मजलिस के तहत मदनी मजलिस कोर्सेज, तो उसमें मदनी तरबियती कोर्स। यानी इसका मतलब कोर्स करवाने वाले उमूमन मदनी इस्लामी भाई होते हैं माशाल्लाह। जी ठीक है, यानी मदनी भी होते हैं आपके साथ और गैर मदनी भी होते हैं। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तारिक अत्तारी। जी। मदनी तरबियती कोर्स मजलिस। माशाल्लाह, सारे ही माशाल्लाह कोर्स मजलिस के हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारिक भाई आप यहाँ आकर आज सिलसिले में? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है। पहले मदनी चैनल पर देखते थे, आज आप भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है जनाब, तो देखिए अब आगे कहाँ तक जाती है मदनी काफ़िला मजलिस या हमारे खुसूसी इस्लाम भाई। मैं चाहूँगा इनको खुद उनकी जगह तक लेके चलें। आइए हुजूर तशरीफ मेरे साथ आइए इंशाल्लाह। आइए, बाकी इस्लाम भाई भी आ जाएँ, आप उनको साथ ले लें। आइए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। इंशाल्लाह आपका मुकाबला होगा मदनी काफ़िला वालों से, भरपूर तैयारी करनी है, इनको जगह बिठाएँ इंशाल्लाह। जी जनाब, अब बुकरानदाजी है अगले शोबे की। लाइए पर्ची। अब देखें कि कौन सा शोबा उसका मुकाबला है किस शोबे से। एक शोबे वालों के लिए दुआ हुई है लेकिन नाम तो अभी तक नहीं आया है। चलें भाई, हमें पहले कॉल्स दे दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीम ज़मान अर्ज़ कर रहा हूँ मुत्तहिदा अरब इमारत से। मैं कराची पाकिस्तान मजीद का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह आज का ये प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीज़न नंबर 5, जिसमें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एहतमाम किया गया है इल्म दीन को फ़रोग़ देने के लिए। ये सिलसिला पहले से ही माशाल्लाह लाखों दिलों की धड़कन बन चुका था स्टूडेंट्स लेवल पर, मगर आज माशाल्लाह हबीब भाई की और मदनी चैनल की इस प्लानिंग से यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो कि दावत इस्लामी से मुंसलिक हैं उनको मदऊ किया गया है। और इतने सारे शोबाजात को देखकर आज दिल से ये बात निकल रही है कि दावत इस्लामी वाकई एक मदनी गुलदस्ते की तरह है। बहुत सारे शोबाजात जिनको आज मदऊ किया गया है, इन सबको देखकर दावत इस्लामी की वसअत और इस प्यारी तहरीक को जिस मुनज़्ज़म तरीके से अमीर अहले सुन्नत और सारे निगरान जो इसमें इसकी काविशों में बराबर के शरीक हैं वो सब इसको चला रहे हैं, ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है इनकी अनथनक मेहनत और खुलूस दिल का। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम व करम अता फरमाए। जिस मकसद के लिए और दीनी तालीम के लिए ये प्रोग्राम
चल रहा है, अल्लाह ताला हमारी पूरी आइंदा आने वाली नस्लें इसके रंग में रंग जाएं और दीन इल्म हासिल करें, इसके मुस्तफ़ा से अपने दिलों को मुनव्वर करें और इसी तरीके से इल्म दीन को मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला दावत इस्लामी के ज़रिए पूरी दुनिया में इसको फैलाएं। ये सारे शोबाजात हमारे नौजवान नस्लों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारी वो नौजवान नस्ल, चाहे वो किसी कॉलेज से वाबस्ता हो, चाहे किसी आईटी से वाबस्ता हो या किसी और दूसरे शोबे से वाबस्ता हो, वो सब लोग इसी तरीके से अपने मदनी होलिये में शरीयत पर चलते हुए अपने हर काम को बाखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी दुआओं का, आपकी हौसला अफजाई का। कॉल्स और भी लेंगे और नाम भी बोलेंगे। सिलसिला कहाँ कहाँ देखा जा रहा है इस वक्त भी आपको जानकर खुशी होगी। जैसे अरब इमारात से कॉल आई, दुनिया के कई मुल्कों में देख रहे हैं इस्लाम भाई। मुझे भी मैसेज आया है कि लातीनी अमेरिका, लैटिन अमेरिका जो है, यानी जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है, वहाँ भी इस वक्त ये सिलसिला देखा जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल कहाँ नहीं, दावत इस्लामी कहाँ नहीं, हम आपको भी मरहबा कहते हैं। नाम ऐलान कर दें पहले जी, चले नाम ऐलान करते हैं। पहला शोबा जो आज अब अगले राउंड में अगला मुकाबला हो रहा है, वो शोबा मेरे नज़दीक, यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि किन शोबाजात को आप समझते हैं कि वो बहुत आगे तक जाएंगे और जो दूसरे शोबा वालों को अच्छा, जिसको कहते हैं ना कंपटीशन दे सकते हैं, तो वो शोबा है जिसका नाम अब मैं लेने जा रहा हूँ। वन ऑफ द फेवरेट जो मुझे लगता है, वल्लाहु आलम आगे जाते नहीं जाते क्योंकि सामने भी मदनी होते हैं, अल मदीनतुल इल्मिया, जिनका काम ही किताबों के दरमियान रहना है, इल्म को तरवीज देना है। माशाअल्लाह अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लाम को मरहबा कहते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और अब जनाब अल मदीनतुल इल्मिया से मुकाबला किसने करना है? बड़ी दुआएं हुई हैं नात ख़वानों के लिए। आ जाइए जनाब, पहले ही राउंड में आपकी बारी पड़ गई है हमारे अल मदीनतुल इल्मिया वालों के साथ। तो अल मदीनतुल इल्मिया का मुकाबला होगा नात ख़वां इस्लामी भाइयों से। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। नात ख़वां तो सोच रहे होंगे नात सुन लें हमसे, अल मदीनतुल इल्मिया वालों के सामने क्या जवाब देंगे। लेकिन माशाल्लाह ये बताता चलूं कि हमारे नात ख़वां इस्लामी भाई भी मदनी हैं और ज़ाहिर है कि ये उस दिन मुकाबला होता है जो सवालात पूछे गए मुस्तहज़र हैं कि नहीं, याद हैं कि नहीं। या एक बात और जहन में होनी चाहिए, ये हमेशा जहन में रखें कि किसी को कोई जवाब अगर ना आए ना, तो अदम तवज्जो जो है वो अदम इल्म की दलील नहीं होती। बाज़ औक़ात उस वक्त जवाब जहन में नहीं होता, इल्म बहुत होता है मगर जो सवाल पूछा गया वही नहीं पढ़ा, तो इससे कोई ये फ़ैसला ना कर ले, ना खुदा ना खास्ता कहीं इन सिलसिलों में आगे जाकर किसी के बारे में ये जहन ना हो कि यार ये तो जामिया के उस्ताद हैं, तो ये अल मदीनतुल इल्मिया के हैं, ये तो मदनी हैं, फ़लाँ से पीछे रह गए। तो आगे पीछे रहने के लिए तो हम आए नहीं हैं, हम इन्हीं नीयतों के साथ आए। हम आप सिलसिला करने से पहले भी हमने एक मशवरा किया था इन इस्लामी भाइयों के साथ कि देखेंगे सोच कर सिलसिला कर रहे हैं, किसी को आगे ले जाने, किसी को पीछे करने के लिए नहीं, बस किसी तरह घर घर में इल्म दीन पहुंचाया जाए। सवालों जवाब के ज़रिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं, चलें इसी तरह इल्म दीन सीख लें, कुछ शरई मसाइल सीख लें। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ़िक़ही पहेलियाँ भी होंगी, तो फ़िक़ही मसाइल आप घर बैठे सीखेंगे। अगर आप डायरी और कलम बना लें, ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 के लिए सिलसिला ख़त्म होगा, आपके पास बेहतरीन ख़जाना इल्म दीन का शुरू हो जाएगा। तारुफ़ लेते हैं हमारे अल मदीनतुल इल्मिया के इस्लामी भाइयों से। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अदनान चिश्ती मदनी, माशाअल्लाह। अल मदीनतुल इल्मिया, शोबा फैज़ान सहाबा और अहले बैत की माशाअल्लाह, फैज़ान सहाबा और अहले बैत। जी। मोहम्मद ताहिर रज़ा अत्तारी, शोबा फैज़ान मदनी मुज़ाकरा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी अल मदनी, शोबा इस्लाही कुतुब अल मदीनतुल इल्मिया। माशाअल्लाह, इस्लाही कुतुब के शोबे वाले इस्लामी भाई भी आ गए हैं। अल मदीनतुल इल्मिया वाले क्या महसूस कर रहे हैं? ज़हनी आज़माइश में आना कैसा फील हो रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एहसासात हैं, और चूँकि ये एक नॉलेज को जो विच इज़ रिलेटेड टू शरिया, इस्लामिक जो नॉलेज है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जो फ़र्ज़ुलूम से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक से, तो यूँ चूँकि पहले मदनी मुन्नों का होता रहा जो सिलसिले थे सीज़न 4 तक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एहसासात हैं और इंशाल्लाह नियत है। और माशाल्लाह जो पैकेजेस रखे गए हैं बहुत अच्छा, उनमें सबसे अच्छा तो उम्रे का टिकट, इंशाल्लाह नियत है कि उम्रे पर जाएँ इंशाल्लाह। वरना किताबों का तो शगफ इल्मिया वालों को रहता है। आपने
आपने क्या प्लान किया है, क्या किताबें खरीदेंगे अगर किताबों का वाउचर मिला? माशाल्लाह हमारे लिए मैंने बहुत अच्छी किताबें बहार शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में छप कर है, जिद्दुल मुमतार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके अलावा ढेरों किताबें हैं सीरत के हवाले से। आपका तो फिर लाइब्रेरी भरने का इरादा करके लाए होंगे आप लोग माशाल्लाह, किताबों से बड़ा शगफ है। और मुझे बताया गया कि जब शोभा जात को जाके इनामात बताए गए ना कि इस बार क्या इनामात है, तो सबसे ज़्यादा खुशी का इज़हार इल्मिया वालों ने किया कि चलो जनाब किताबें रखी हैं, हम किताबें खरीदेंगे। तो ये इल्म का शौक़ होता है। अब चलते हैं नातख़्वां इस्लामी भाइयों की तरफ। जी जनाब, नाम भी बताइए और शोभा तो आपके सबको पता ही है। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असद रज़ा तारी मदनी। मोहम्मद असद रज़ा भाई। जी मोहम्मद अदनान अत्तारी। माशाल्लाह, अदनान भाई भी हैं माशाल्लाह। जी अबू आसिफ मोहम्मद काशिफुल अत्तारी। माशाल्लाह। अब इसमें मदनी भी हैं और नातख़्वां भी हैं। और नातख़्वां वैसे इतने बुझे नहीं होते असद भाई, क्या वजह है? कुछ ऐसा नहीं है? कोई बात नहीं, अलमदीनतुल इल्मिया से आ गया तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह तैयारी आप मजबूत करें। अभी आपके पास तो काफ़ी टाइम है, ये तो इतवार से शुरू होगा, आपकी तो बारी भी लेट आनी है। तो ज़रा थोड़ा सा नातों के साथ साथ जो है ना वो सिलेबस पर भी तैयारी कर लीजिएगा। क्या फरमाते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहले जैसे हमारा ज़ौक़ नात हुआ था सिलसिला, तो उसमें भी शिरकत हुई थी, लेकिन मदनी मुन्ना का जो पिछला सिलसिला हुआ, इससे जो आपने किया था ज़हनी आज़माइश, उसमें जो सवालात आपने उनको दिए थे, जो सवालात के जवाबात आते थे, उस वक्त एक एहसास होता था कि बहुत एक इल्म का ख़जाना आ रहा है। और अब भी यही नीयत है कि बाज़ औक़ात इंसान मुताला भी करता है, लेकिन बाज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी भी होती हैं और बहुत कीमती वो सरमाया होता है। तो इस ज़हनी आज़माइश के ज़रिए वो चीज़ें हमें सीखने को भी मिलेंगी और मदनी चैनल के ज़रिए मदनी चैनल के नाज़रीन तक ये तमाम मालूमात पहुँचाने का ज़रिया। माशाल्लाह, नातख़्वां भी अच्छी नीयतों से आए हैं। अब नातख़्वां मंच पर आएँ और माइक भी हाथ में हो और हमें बगैर सुने कुछ भेज दें तो अच्छा नहीं लगता। एक शेर जो आपको बड़ा पसंद हो किसी भी कलाम का, वो सुनाइए। तर्ज के साथ सुनाना लेकिन। जी देखें, पहले ही आजमाइश में आ गए। चले जनाब सुनाइए। मैं वो शेर पढ़ देता हूँ बापा का। माशाल्लाह, बापा की मनकबत। जी जी, जो आप पढ़ना चाहें, कोई भी एक कलाम का कोई भी शेर आप पढ़ें, फिर अब बताएंगे हमने करना क्या आपके साथ। आप पढ़ें। ज़ारिदना में नशम हमदा इमाम नशम, ज़ारिदना में नशम हमदा इमाम नशम, मुर्शिद के नाम पर जाओ मेरी कुर्बान हो, मुर्शिद के इमाम पर जाओ मेरी कुर्बान हो। ज़ारिदना में नशम हमदा इमाम नशम, ज़ारिदा ज़ुल्फ़ानुना ज़ारिदा ज़ुल्फ़ानुना ओ ज़ारिदा बेज़ारा, सैयदिया तारा सैयदिया तारा सैयदिया तारा सैयदिया तारा, मुर्शिदिया अत्तारा जो है ये ज़बर है रा पे या अलिफ है आखिर में? असल में ये मनकबत है पश्तो में, ठीक है। और पश्तो ज़बान में कोई भी आप नाम ले लें तो उसके आगे वो अलिफ लगा देते हैं। अलिफ लगा देते हैं, ठीक है। बराबर वाले को माइक दें, जरा अलिफ से कोई शेर सुना दीजिए। वो भी तर्ज में सुनाना है आप, और सोच के सुनाइएगा, अगले ने भी सुनाना है फिर जो जहाँ इख्तिताम करेंगे आप। ज़हनी आज़माइश अभी से शुरू कर देना भाई। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं आका, जिस राह चल दिए हैं कूचे सुभान अल्लाह जी, दिए हैं नून। चलें भाई, ज़हनी आजमाइश शुरू हो चुकी है। बराबर वाले का कोई ख्याल ही कर लेते भाई। ना दौलत दे ना शोहरत दे, मुझे
بس یہ سعادت دے آقا، نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ تو نعت خوانوں سے نعتیں بھی سنیں گے، سوالات بھی کریں گے۔ یہ نہ سمجھیں یہ کہ ہم نعت سنا دیں گے تو سوال سے بچ جائیں گے، آپ کو سسٹم کے مطابق جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے ہوں گے۔ اور پہلا ہی مقابلہ ان کا ہو گیا جناب المدینۃ العلمیہ والوں سے۔ خوشخبری دوں، یہ سلسلہ اس وقت اجمیر شریف میں بھی دیکھا جا رہا ہے جی۔ اور ایک سوال مجھے آیا ہے کہ یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں مدنی اسلامی بھائی، مدنی اسلامی بھائی، یہ مدنی کہتے کس کو ہیں؟ چلیں جناب یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ مدنی اسلامی بھائی یہ ہماری ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کرنے والے نارملی مولانا کہا جاتا ہے، کچھ لوگ مزید آگے بڑھ کر علامہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دعوت اسلامی کے جامعات سے درس نظامی جو عالم بنانے والا کورس ہے، جب وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو انہیں ماشاءاللہ مدنی کہا جاتا ہے۔ تو آج یہ تقریباً 14 شعبہ جات میں اکثر مدنی اسلامی بھائی ہیں، کچھ غیر مدنی بھی ہیں، مگر وہ بھی ماشاءاللہ تیاری کر کے آئیں گے تو یہ بہت خوبصورت گلدستہ ہوگا۔ یاد رہے اس کے بعد 2 ٹیمیں باقی بچتی ہیں تو ان کی قرآن دازی کی حاجت نہیں ہے۔ مدرسۃ المدینہ اور مدنی انعامات، جی وہ مجلس کا آخری مقابلہ ہوگا۔ تو اب اسکرین پر پھر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ کہ نعت خواں اسلامی بھائیوں کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے المدینۃ العلمیہ سے۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی، نعت خواں مجلس بمقابلہ المدینۃ العلمیہ۔ تیاری بہت زبردست کرنی پڑے گی نعت خوانوں کو۔ اب دیکھیں کہ یہ کیا تیاری کرتے ہیں۔ کالز لیتے ہیں سلسلے کے اور پھر اپنے سلسلے کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ کالز دے دیجیے۔ جی میرا نام ہے نور حسن، سعودی عرب سے بول رہا ہوں اور میں اس تعویذ والے ٹیم کے ساتھ ہوں، میری دعا انہی کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تعویذات والوں کے ساتھ ہے۔ چلیں بھائی عرب شریف سے تعویذات والوں کے لیے کال آ گئی ہے، چلیں جناب اگلی کال دے بھائی۔ السلام علیکم، میں ارشد اتاری بول رہا ہوں انڈیا رائے پور سے۔ یہ سلسلہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بڑی مہربانی، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں غلام محی الدین عطاری اٹلی سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے جو شعبہ چوز کیا ہے وہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، کیونکہ نگاہ مرشدی سے میرے ٹیچر بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ کو تو اپنے ٹیچر کا ہی ساتھ دینا تھا بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ دیکھیں میرے پیارے اسلام بھائیو، گھروں میں مقابلے شروع ہو گئے ہیں، سپورٹرز بنتے جا رہے ہیں کہ میری ٹیم یہ ہے، میرا شعبہ یہ ہے۔ اب دیکھیں آپ کا شعبہ کون سا ہے، ہمیں بتائیے۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وحید احمد ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں ذہنی آزمائش سیزن 5 کو مدنی چینل پر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل یہ سلسلہ لے کر کے آیا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی کسی ٹیم کو چوائس کروں، لیکن جو سامنے اسلامی بھائی آ رہے ہیں وہ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا ہیں کہ کس کو چنوں اور کس کو نہ چنوں۔ تو لہٰذا میرے دل میں یہی دعا ہے کہ سب کے سب میرے اپنے ہیں، یہ سب ہیرے میرے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید انتہائی اعلیٰ درجے پر فیض فرمائے، اور ہمارے حبیب طاری بھائی جو یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے لیے، میرے گھر کے والوں کے لیے، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو تا قیامت دن دگنی اور رات چگنی اور ڈبل اس کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ میری دلی دعا ہے اور دلی خواہش ہے۔ اور دوسرا عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ای میل کی تھی، میں دعوت اسلامی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، کائنڈلی مجھے اس کے اندر بھی آپ شامل فرمائیں تاکہ میں اپنے دل کی
जो हसरत है वो पूरी कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी हौसला अफजाई का, आपकी दुआओं का और सब के लिए दुआओं का बहुत शुक्रिया। आप दावत इस्लामी के साथ हैं। जो चाहता है कि मैं दावत इस्लामी के साथ काम करना चाहता हूँ, दावत इस्लामी आपकी है। आप अपने करीबी ज़िम्मेदारान के पास जाइए, मदरसा, दर्स, इज्तिमा, काफ़िला, ये सारे मदनी काम आपके शुरू कर दीजिए और दावत इस्लामी का हिस्सा बन जाइए। हमारी कोई मेंबरशिप नहीं है, हमारी तरफ कोई फॉर्म आपको नहीं भरना, दावत इस्लामी तमाम मुसलमानों की है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें शामिल हो जाइए। ढाका से मुझे मैसेज आया है, मस्जिदों के शहर ढाका बांग्लादेश में भी ये सिलसिला इस वक्त देख रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा सपोर्ट जो है हम जामियतुल मदीना लिल बनीन के साथ हैं। तो जामियतुल मदीना के लिए ढाका से नेक ख्वाहिशात का इज़हार है। अगली कॉल देंगे हमें आप, जी कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ा अच्छा जो है प्रोग्राम आपने शुरू किया है कि ज़हनी आज़माइश सीजन, और आपसे गुजारिश ये है हमारे हाजी हबीब साहब कि अभी जो कुरान की तिलावत जो किए ना, जो बड़ी उनकी बहुत प्यारी आवाज़ थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी, सुन के एक किस्म का दिल के अंदर जो है ईमान ताज़ा हो रहा था। बहुत अच्छी आवाज़ है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। और बस इतना ही कहना था मेरे को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल देखते रहिए, तिलावत भी सुनेंगे, नाज शरीफ भी सुनेंगे, इल्म दीन भी सीखेंगे। ये चैनल 100% मदनी चैनल है और नीयत यही है कि आप सब तक इल्म दीन पहुँचाया जाए। तो अब हम ऐसा करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, मरहबा। आप देखते हैं कि आप जब मुकाबले में आएंगे तो हमारे साथ कहाँ तक जाते हैं। आप अपनी नशिस्तों पर, अपनी जगह पर जाकर तशरीफ़ रख सकते हैं। अब हम आपको इंशाअल्लाह ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, अब आपने करवानदाजी देख ली, तो हम इंशाअल्लाह चलेंगे उस चार्ट की तरफ के किसका मुकाबला होगा किसके साथ, और फिर जो पीछे रह जाएंगे, आगे जाने वाले तो पहुंच जाएंगे 7 शोबाजात हमारे क्वार्टर फाइनल में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर फाइनल में 8 शोबे होने चाहिए ताकि फिर सेमीफाइनल में 4 पहुंचे और फाइनल में 2 पहुंचे। वो एक कौन होगा जो उन 7 को ज्वाइन करेगा। पीछे रह जाने वाले 7 में से हम चुनेंगे 1। अब वो 1 कैसे चुनेंगे वो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। जी जनाब, ये आ गए हैं मुकाबले। पहला मुकाबला है दारुल मदीना बमुकाबला मदनी चैनल, जामियतुल मदीना बमुकाबला मजलिस IT। शोबा तालीम का मुकाबला होगा तावीज़ात अत्तारिया से। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन मकतबतुल मदीना के सामने होगा। मजलिस खुसूसी इस्लामी भाई मदनी काफिला के साथ मुकाबला करेंगे। नातख्वा मजलिस और अल मदीनतुल इल्मिया होंगे आमने सामने। मदरसतुल मदीना और मदनी इनामात, ये होगा हमारे पहले राउंड का आखिरी मुकाबला। ये 7 मुकाबले, 7 टीम्स पहुंच जाएंगी ऑटोमेटिकली हमारे क्वार्टर फाइनल में। याद रहे कि पहले राउंड में हमसे जुदा होने वाले जो हमसे जुदा होते जाएंगे, हम उन्हें पेश करेंगे 2600 रुपये का एक चेक, एक वाउचर। और ये चेक किसी बैंक से कैश नहीं होगा, बल्कि मकतबतुल मदीना पर जाकर उस चेक के ज़रिए आप 2600 रुपये की किताबें या मकतबे की जो भी मसनूआत हैं, जो मकतबा इसको सेल करता है, आप वो ख़रीद सकेंगे। रसाइल हों, VCDs हों, मेमोरी कार्ड हों। फिर इसके बाद जो क्वार्टर फाइनल में जाकर हमसे जुदा हो जाएंगे, उन्हें हम 6300 रुपये का, ये भी निस्बतें हैं, ये भी सवाल हो सकता है नाजरीन से, 63 क्यों, 2600 क्यों, उम्मीद है आप पहुंच रहे होंगे। तो 6300 का वाउचर दिया जाएगा, चेक दिया जाएगा, वो वहां जाकर उसे खरीदारी कर सकेंगे। जो सेमीफाइनल में जाकर हमसे जुदा हो जाएंगे, उन्हें 12,000 रुपये का वाउचर पेश किया जाएगा। जो फाइनल में पहुंचकर भी हमसे जुदा होंगे, उन तीनों इस्लामी भाइयों को जो भी इनामात हैं, पूरी टीम को नहीं, हर इस्लामी भाई को दिया जाएगा 12,000 रुपये। और फाइनल में जाकर हमसे जो जुदा होंगे, उन्हें 25,000 रुपये के वाउचर्स दिए जाएंगे। और जो फाइनल इंशाअल्लाह सीज़न 5 का यहाँ से जीतेंगे, हर इस्लामी भाई को 50,000 रुपये के वाउचर्स, चेक दिए जाएंगे। अब उनकी मर्ज़ी है, उन 50,000 रुपये में वो जाकर मकतबे से किताबें ख़रीदें, अपनी लाइब्रेरी भर दें, या चाहें तो मकतबतुल मदीना ही वालों से अपने लिए उम्रे का टिकट हासिल कर लें। तो बहरहाल इंशाअल्लाह अब आते हैं कि ये मुकाबला आगे बढ़ेगा कैसे। जी बताइए। ये देखिए, जो हमारी 6-7 टीमें पीछे रह जाएंगी ना, तो पीछे रह जाने वाली 7 में से एक, जो 7 होंगी उनकी होगी कुरानदाजी। और कुरानदाजी से एक जो टीम होगी, एक जो शोबा होगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्वार्टर फाइनल में नहीं, एक कदम आगे बढ़ा दिया जाएगा। और फिर मुकाबला होगा 6 टीम्स के दरमियान, 6 इस्लामी भाइयों के दरमियान, 6 शोबाजात के दरमियान, जिसमें से 3 शोबाजात बाहर आ जाएंगे और जो एक कदम आगे बढ़ गए थे वो उनके साथ मिल जाएंगे। अब इन चारों के दरमियान फिर 2-2 के दरमियान मुकाबला होगा और फिर एक और मुकाबला होगा जिसमें से वो इस्लामी बाहर आएंगे। यानी आप अगर पहले राउंड में हार गए तो फिर 3 मुकाबले जीतने पड़ेंगे
क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि पहले राउंड ही में आगे बढ़ जाएं, वरना क्वार्टर फाइनल का सफर तय करने के लिए मजीद 3, ये यकीनन वो शॉर्ट मुकाबले होंगे, वो जीतने पड़ेंगे, जब जाकर आप पहुंचेंगे क्वार्टर फाइनल में। और फिर दिखाइए क्वार्टर फाइनल किस तरह होगा और सेमीफाइनल और फाइनल किस तरह होगा। जी अब विनर टीम 1 और विनर टीम 2 का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा। 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8, इस तरह ये 8 टीमों के दरमियान होगा क्वार्टर फाइनल। फिर आगे बढ़ेंगे हम सेमीफाइनल की तरफ। सेमीफाइनल जो 4 टीमें बच जाएंगी, 4 शोबाजात वहां तक पहुंच जाएंगे, उनके दरमियान होगा सेमीफाइनल। और फिर इंशाअल्लाह होगा सीजन 5 का फाइनल। देखें कौन सा शोबा वहां तक पहुंचता है। नाजरीन, सामईन कॉल कर रहे हैं, अपनी अपनी टीम पसंद कर रहे हैं, अपना शोबा पसंद कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। देखें जनाब कौन पहुंचता है आगे तक। अच्छा नाजरीन को एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि यहां तो जो हमसे जुदा होंगे उन्हें चेक्स दिए जाएंगे। नाजरीन सोच रहे होंगे हमें क्या मिल सकता है। जी हां, आप भी रोजाना एक इस्लामी भाई को हम 2600 रुपए का चेक देंगे। हम नाजरीन से एक सवाल करेंगे, 26 इस्लामी भाइयों के नाम पुकारेंगे, जो नाजरीन हमें जवाब देंगे। उनमें से कुरानदाजी के ज़रिए एक जो नाम निकलेगा रोज़ाना, उसे भी आपके घर तक इंशाअल्लाह बज़रिए डाक एक चेक पहुँचेगा। और वो चेक किसी भी मकतबतुल मदीना में दुनिया में आप जाएंगे, उससे आप मकतबतुल मदीना पे परचेज़ कर सकेंगे। तो ज़हनी आजमाइश में रोज़ाना हासिल होगा मौका, आपको भी चेक हासिल करने का। सिलसिला देखिएगा, रोज़ाना का सवाल सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब चलते हैं सिलसिले के इख्तिताम की तरफ। इतवार को हम फिर हाजिर होंगे पहला मुकाबला लेकर, और फिर रोज़ाना ही इंशाअल्लाह ये मुकाबले चलते चले जाएंगे और मदनी फूल आप सुनते चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आज पहला सिलसिला है, इसका इख्तिताम हम सलातो सलाम पर खड़े कर, तो बाअदब तमाम इस्लामी भाई खड़े हो जाएं ज़ौक़ व शौक़ के साथ। आइए मिलकर सलातो सलाम पर अपने सिलसिले का इख्तिताम करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रु अलैना मदआ लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ, मुस्तफा खैरुल वरा हो, सरवरे हर दो सरा हो, अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हश्र में सरकार आना, हश्र में सरकार आना, मेरे ऐबों को छुपाना, अपने रब से बख्शवाना, साथ जन्नत में बसाना, और मेरे मौला जब मरे हम कलिमा आप
پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلو علی الحبیب. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی